Hello, good morning to all of you. Yesterday we finished the class AVs. Now come to the next class, that is the class Mammalia, which is the last class of the chordate. Class 5th, Mammals. The important characteristic of class Mammalia, number 1, body covered by body covered by body hair. Okay, so body covered by body hair is the important characteristic feature of class Mammalia. The class Mammalia have wide habitat range. Okay, so they have wide habitat range. कहां से कहां तक मिल सकते हैं आपको ये? फ्रॉम आर्कटिक जोन। आर्कटिक जोन के अंदर आपको मिलेंगे मैमल्स। आपको कहां मिलेंगे? ट्रॉपिक जोन के अंदर मिलेंगे। आपको कहां मिलेंगे? टेम्परेट जोन के अंदर मिलेंगे। अगर आप डेजर्ट जाना चाहें तो वहां पर भी आपको क्या मिलेंगे? मैमल्स। तो आप देखिए, दे हैव ए वाइड हैबिtat range. Yes. Next, they have a wide habitat as well as they have wide habits also. Wide habits. They are cursorial in nature. They have burrowing habits. They have flying habits, just like with bat. They have swimming habit, just like whale. So they have a variety of habits also, wide variety of habitat also. Okay, they have coelom, which is divided into 4 compartments. What? They have coelom. They are coelomate. It means they have a true coelom. And what is the true coelom? Body cavity between body wall and alimentary canal. What is coelom? Suppose this is the body cavity. This is alimentary canal. Okay, this is our body. This is our body. Okay, and this is what? Alimentary canal. The covering or the hollow space here is known as coelom. Coelom is what? Cavity present between body wall and gut. Alimentary canal is also known as gut. This part is known as coelom, which is internally lined by the mesoderm. Okay, so this is internally lined by the mesoderm. This is what? True coelomate. They are true coelomate and their body cavity is divided into 4 compartments. How many compartments? That is 4 compartments. Number 1, that is right pleural cavity. Right pleural cavity. आप लोग जानते होंगे प्लूरल कैविटी क्या होती है? प्लूरल कैविटी वो कैविटी होती है जो लंग्स के आसपास खाली जो स्पेस है, दैट कैविटी इज नोन एज प्लूरल कैविटी. लंग्स के अराउंड में जो कैविटी है उसको हम क्या कहेंगे? प्लूरल कैविटी. सेकेंड, लेफ्ट प्लूरल कैविटी. नेक्स्ट वाली कौन सी है? दैट इज लेफ्ट प्लूरल कैविटी. राइट साइड में और लेफ्ट साइड में. एंड थर्ड वन इज द पेरिकार्डियल. आप लोग सब जानते हैं व्हाट इज पेरिकार्डियल? पेरिकार्डियल इज व्हाट? कैविटी नियर द हार्ट. पेरिकार्डियल कैविटी. एंड द फोर्थ कैविटी, that is the abdominal cavity. Okay, the fourth cavity is abdominal cavity. Fourth one is what? Abdominal cavity. Yes, so mammals are true coelomate having a cavity which is lined by mesoderm present between gut and body wall. And this coelom is divided into 4 compartments. Number 1, right pleural cavity. Number 2, left pleural cavity. Number 3, pericardium cavity. And number 4, abdominal cavity. Okay. Now
I have this. Yes. So आपके 4 पॉइंट्स क्लियर होते हैं. Yes. Now, body of mammal is divided into 4 parts. Body divisible into how many parts? That is 4 parts. Head, neck, trunk and tail. Okay. So body is divided into 4 parts. Next, they have a high heat of metabolism. That's why due to this metabolic energy, they are active in nature. Most active nature animal is mammals. Okay? Due to high rate of metabolism, they are most active animals in animal kingdom. Okay? Yes. Now come to the next point. Body or exoskeleton is covered by hair. That hair provides the insulation as well as a layer of fat present just behind the epidermis, and that layer also provide insulation to the mammals. So there are 2 insulation providing material in the mammals. First is the hair and second is the fat. Fat below the skin, which is also known as blubber. So they have exoskeleton of hairs, and these hairs are made up of which protein? Keratin. Hairs are made up of which protein? That is keratin. Okay? Having nails, claws, hooves, etc. These hairs provide insulation. Plus, they have thick coat of fat. Thick coat of fat under skin, which is known as blubber, which is called blubber. So blubber as well as hairs both provide what? Insulation to the animals. Okay, so mammals have a 2 insulating layer. First is the hair and second one is the blubber. Yes. Now come to the next point. Their foot bears 5 toes. How many toes? Foot bears 5 toes. हमारे अंदर कितने होते हैं टोज? 1, 2, 3, 4, 5. फोर लिम्ब में भी और हाइंड लिम्स में भी कितने टोज हैं? 5 टोज प्रेजेंट होते हैं. एबीज में कितने थे ये टोज? 4 in number, but in our case these are 5 toes. That's why we known as pentadactyl limb. Pentadactyl limb. Okay. These are homeothermal in nature. What is homeothermy? Homeothermy means they maintain their constant body temperature. Okay. For example, in our case we have body temperature of 37 degrees centigrade. We maintain that body temperature via wearing clothes, okay, or wearing less clothes in the summer. So we maintain the temperature according to the, we have a constant body temperature. That is known as homeothermy. Mammals are homeothermal in
nature. Means they are warm-blooded animal. What? They are warm-blooded animals. Warm-blooded means those animals which have a constant body temperature, that is 37 degree centigrade. Constant body temperature. Yes. Now come to the respiration. They have a complete digestive system. You know, mouth and anus both are present. So they have complete digestive system. What do you understand by the complete digestive system? It means tube within tube plant, that is mouth and anus both are present. Mouth and anus both are present. Now come to the respiratory. Next is the respiratory system. Respiratory system is of which type? That is pulmonary respiration. Respiration through the lungs. कौन सा respiration होता है? Pulmonary respiration. सिर्फ एक यही मोड है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होगा, चाहे वो एनिमल फ्लाइंग मोड का बैट हो, चाहे वो एनिमल स्विमिंग करने वाली वेल हो। दोनों एनिमल्स अगर कोई भी हैं तो उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इकलौता जो है रेस्पिरेशन मोड है वो क्या होता है? लंग्स। आपने वेल को देखा होगा, वेल कहाँ रहती है? पानी के अंदर, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए उसको क्या करना पड़ता है? बाहर बार बार जो है पानी से बाहर आना पड़ता है, बिकॉज दे हैव ए पल्मोनरी मोड ऑफ रेस्पिरेशन. Okay, this pulmonary mode of respiration is more efficient in case of mammals rather than others because of just diaphragm. Okay, so this diaphragm, for example, this is the human being. Okay, and there is two cavity. Upper one is known as which cavity? That is thoracic cavity. And this thoracic cavity is divided via abdominal cavity. दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक लाइन है. ये लाइन किससे बनी हुई है? मसल से बनी हुई है. ये जो लाइन आपको दिख रही है ये डायफ्राम है. ये डायफ्राम जो है ये किससे बना हुआ है? मसल से. दिस इज व्हाट? डायफ्राम which is made up of which muscle? That is the radial muscle. और यही कारण है कि हमारा रेस्पिरेशन सबसे ज्यादा एफिशिएंट रेस्पिरेशन है, बिकॉज हमारे पास में हमारी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करने वाली एक मस्कुलर लेयर जो कि किससे बनी हुई है? रेडियल मसल से. किसमें प्रेजेंट होती है? डायफ्राम में जो है प्रेजेंट होती है. प्लीज रिमेंबर दिस वन. यस, नाउ कम टू द circulatory system. Yes, next one is the circulatory system. Yes, how many chambered of heart present in the mammals? That is 4 chambered heart is present. How many chambered? 4 chambered. जब हार्ट 4 चैम्बर्ड है तो कहीं पर भी कोई चांसेस नहीं है कि ब्लड की क्या हो? मिक्सिंग हो. डीऑक्सीडेटेड ब्लड क्या रहेगा? सेपरेट. और ऑक्सीडेटेड ब्लड क्या रहेगा? सेपरेट. फॉर एग्जांपल मैं ये हार्ट लेती हूँ, ठीक है ना? ये है हार्ट, थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर है लेकिन हार्ट है, ठीक है? ये इसके क्या है? 4 चैम्बर्ड है. ओके, दिस वन इज राइट ऑरिकल, दिस वन इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस वन राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन लेफ्ट वेंट्रिकल. इन दोनों के अंदर राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड फ्लो करेगा वो कौन सा वाला ब्लड है? डीऑक्सीनेटेड. और जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड फ्लो करेगा वो कौन सा ब्लड है? दैट इज ऑक्सीजनेटेड. कहीं कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है. आपके ऑर्गन्स कौन सा ब्लड रिसीव कर रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहे हैं? रिसीव.
जब ऑर्गन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं तो आपकी किडनी को एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा फंक्शन करने की कोई जरूरत नहीं होती कि वो क्या करे, सेपरेट करे। तो जिस तरह रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट था रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में और फिशेस में, उस तरह का कोई भी रीनल पोर्टल सिस्टम मैमल्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो जहां पर भी 4 चैम्बर हार्ट होगा वहां पर रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होगा, क्योंकि मिक्सिंग के कोई चांसेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एम्फीबियंस को लेते हो, फिशेस को लेते हो, तो उनके अंदर चैम्बर कितना चैम्बर हार्ट है, एम्फीबियंस में 3 है, फिशेस में 2 है। तो उनके अंदर क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड भी होगा और ऑक्सीजनेटेड भी होगा, और बॉडी को जो सप्लाई हो रहा है टिश्यू, वो मिक्स ब्लड सप्लाई हो रहा है। तब इस समय किडनी को एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, फंक्शन करना पड़ेगा, एंड दैट सिस्टम इज रीनल पोर्टल सिस्टम। व्हाइल इन आवर केस, दैट इज इन मैमल्स, दिस रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट। तो रीनल पोर्टल सिस्टम हमारे में क्या है, एब्सेंट है। क्यों, रीजन क्या है, just because there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood, because there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood। ओके बेटा, क्लियर है ये? यस। नेक्स्ट आते हैं अपन इसके अंदर, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। बेटा पोर्टल सिस्टम आपको पहले भी बताया है, पोर्टल सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर ब्लड किसी ऑर्गन के पास में पहले जाएगा बजाय हार्ट के जाने पे। जब ऑर्गन और ऑर्गन का कनेक्शन आ रहा है उसको आपने कहा था पोर्टल सिस्टम। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल आपका जो ब्लड है जो कहां से आ रहा है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल से, गट से जो ब्लड आएगा, ऑब्वियसली सारा का सारा एब्जॉर्प्शन किसमें होता है, गट के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो जब गट के अंदर कोई ब्लड आएगा और वो एब्जॉर्ब करके आ रहा है फूड का, तो इसको जाना कहां चाहिए था, डायरेक्टली कहां जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था आपके हार्ट के पास में। लेकिन ये हार्ट के पास में ना जाकर कहां गया, लीवर के पास में। लीवर ने इसमें से कुछ एब्जॉर्ब करा और कुछ इसमें से रिलीज करा, और लीवर के बाद में ये किसमें गया, हार्ट के पास में। तो ये एक ऑर्गन गट और ये दूसरा ऑर्गन लीवर। ये जो ऑर्गन के ऑर्गन का कनेक्शन है, इस ऑर्गन के कनेक्शन को ही आप क्या कहते हो, पोर्टल सिस्टम। यहाँ पर ब्लड जो है वो डायरेक्टली क्या होगा, हार्ट में ना जाकर किसी ऑर्गन के पास में जाता है। तो ये सिस्टम हमारे अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मैमल्स। ओके, दिस वन इज क्लियर, क्लियर और नॉट? हाँ जी, आगे बढ़े। Now come to the excretory system. Yes, excretory system के अंदर excretion किसके थ्रू हो रहा है, वाया किडनी। तो आपका excretory system किससे बना हुआ है, किडनी से बना हुआ है। excretion किसके थ्रू हुआ, किडनी के थ्रू हुआ। अब excretory material क्या है, excretory substance क्या है? Excretory substance is what? यूरिया। तो जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो सब किसका एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिया का, क्योंकि यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू अमोनिया। यूरिया इज व्हाट, लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया। और इस यूरिया का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर कहाँ होता है, इस यूरिया का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर लीवर करता है, ठीक है ना। तो ये यूरिया किसने बनाया है, लीवर ने। सबसे पहले क्या बनेगा, अमोनिया। किडनी क्या कर रही है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या बनाएगी, दैट इज अमोनिया। अमोनिया किसके पास जाएगा, लीवर के पास में। लीवर उसको किस में चेंज कर देगा, यूरिया के अंदर। और वो यूरिया जो है आपकी किडनी क्या करेगी, एक्सक्रीट आउट करके उसको रिमूव आउट कर देगी। यस, अब देखो किडनी की बात आती है तो किडनी हमेशा ध्यान रखना, हाउ मेनी टाइप, 3 टाइप।
एक होता है प्रोनेफ्रिक, दूसरा होता है मीजोनेफ्रिक और तीसरी है मेटानेफ्रिक। सो प्लीज रिमेंबर, अगर किडनी पूछी जाती है मैमल्स के अंदर स्पेशली, तो विच टाइप ऑफ किडनी इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग, एंड दैट वन इज द मेटानेफ्रिक। अब ये मेटानेफ्रिक क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज देती हूँ, ये आपका नेफ्रॉन है, ठीक है? नेफ्रॉन आपको मालूम नहीं है, व्हाट इज नेफ्रॉन? व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन क्या हुआ? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हुई किसकी? किडनी की। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा था उस समय अगर इस नेफ्रॉन के आगे वाला पार्ट, इस नेफ्रॉन के सबसे आगे वाला पार्ट, प्रो वाला पार्ट, अगर किडनी का फॉर्मेशन करेगा, आप उसको किडनी को क्या कहोगे? प्रोनेफ्रिक। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ उस समय अगर बीच वाला पार्ट किडनी का फॉर्मेशन करेगा तो आप उसे क्या कहोगे? मीजोनेफ्रिक। लेकिन अगर नेफ्रॉन का लास्ट वाला पार्ट किडनी का फॉर्मेशन करता है तो अब आप उसे क्या कहेंगे? दैट इज मेटानेफ्रिक। तो मैमल्स के अंदर नेफ्रॉन का लास्ट वाला पार्ट क्या बनाता है? किडनी का फॉर्मेशन करता है। तो विच टाइप ऑफ किडनी इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मैमल्स? दैट टाइप इज मेटानेफ्रिक। ओके, यस। नाउ कम टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमेशा ध्यान रखना, सेक्सेस जो है दे आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल हमेशा दोनों अलग होंगे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर? मैमल्स के अंदर। आप सब जानते हैं इसके बारे में। दे प्रोड्यूस यंग वन, ओके। व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग यंग वन दे आर नोन एज व्हाट? विविपेरस। क्या कहोगे आप उसको? विविपेरस। लेकिन कुछ ऐसे मैमल्स भी हैं जो एग भी ले करते हैं, दे आर नोन एज ओविपेरस। आप ये देखिए सभी तरह की वैरायटी आपको कहां मिल रही है? मैमल्स के अंदर। दे आर विविपेरस ऑल्सो, दे आर ओविपेरस ऑल्सो, एज वेल एज दे आर ओवोविविपेरस। व्हाट इज ओवोविविपेरस? बेटा ओवोविविपेरस वो होता है जिसके अंदर ना तो एग का प्रोडक्शन हो रहा है और ना ही आप कह सकते हो कि एक जो है एम्ब्रियो या फीटस का फॉर्मेशन हो रहा है। इस केस के अंदर फॉर एग्जांपल मार्सुपियल्स जो हैं, मार्सुपियल्स आप जानते होंगे, कैंगरू वगैरह जो है सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं मार्सुपियल्स। तो मार्सुपियल्स जिसको अपन कहते हैं पाउच्ड एनिमल्स। इन पाउच्ड एनिमल्स के अंदर जो यंग वन है वो बहुत ही स्मॉल होता है। सपोज करो कैंगरू जो है, कैंगरू का बेबी जो है दैट इज 1% ऑफ देयर बॉडी वेट। सपोज करो कोई कैंगरू का वेट 70 kg का है, 80 kg का है, तो उसका जो बेबी होगा दैट इज ऑफ 1%, ठीक है? उसका 1% बॉडी वेट का जो है। अब उस बेबी को आप ना तो फुल फ्लेज बेबी में लेके आ सकते हो विविपेरस में, ना ही आप उसको एग वाली कंडीशन में लेके जाओगे। इस कंडीशन के अंदर ना वो एग है ना वो बेबी है, वो कौन सी कंडीशन में रहेगा? ओवोविविपेरस। और एक पाउच के अंदर क्या करेगा? ग्रो करेगा, ठीक है ना? एक पाउच के अंदर क्या करता है? वो ग्रो करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? ओवोविविपेरस। तीनों वैरायटी आपको किसके अंदर मिल रही है? विविपेरस के अंदर, ओविपेरस और ओवोविविपेरस। किसके अंदर मिली है तीनों वैरायटी? ये दैट इज इन केस ऑफ मैमल्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। Yes, now come to the skin. Skin have multicellular glands. Which type of gland? They have multicellular gland. And these glands are number 1, sweat gland. आप जानते हैं सब sweat gland? हमारी पूरी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंस होते हैं? sweat gland. ये जो स्वेट ग्लैंड होता है ये थर्मोरेगुलेटरी इन नेचर भी होता है। प्लीज रिमेंबर दिस वन, दे आर थर्मोरेगुलेटरी इन नेचर।
ओके, आपको मालूम भी है, आपको जब समर में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो उससे क्या होता है, अपने आप एयर उसके कांटेक्ट में आएगी और आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ओके, तो दे आर थर्मोरेगुलेटरी इन नेचर। यस, these sweat gland, they are what? Multicellular. Number 2, sebaceous gland. Number 3, cerumen gland. Cerumen gland, they are present in the ear. आप जानते होंगे जब आप ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम सीरोमेन ग्लैंड्स भी पढ़ेंगे जो कि क्या करते हैं, वैक्स का सिक्रीशन करते हैं। प्लीज रिमेंबर ऑल दीज ग्लैंड्स आर व्हाट, दे आर multicellular in nature, and most important, the class mammals is on the basis of, the name of the class mammal is basis of what, mammary glands. So mammary gland is also multicellular in nature. According to the secretion, they are further divided. Please remember, according to secretion, this differentiation is according to the what, they are grade, that is unicellular or multicellular. They are made up of one cell or more than one cell. But now according to the secretion, किस तरह का सिक्रीशन ये करते हैं और तरह के साथ साथ में कैसे ये सिक्रीशन करते हैं, इनका मोड क्या है, अकॉर्डिंग टू द सिक्रीशन मोड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1, मीरोक्राइन। Number 2, apocrine. Number 3, that is holocrine. This is important one. इस पे नीट पे क्वेश्चन भी आता है बेटा, थोड़ा सा इसको ध्यान से करेंगे। अगर हम मीरोक्राइन की बात करते हैं तो मीरोक्राइन क्या है, सपोज करो ये सेल है, ये क्या है, सेल्स है। ओके, ये सेल अगर अपना सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहा है और वो सिक्रीशन बिना इसको रप्चर करे, बिना इसको किसी को टच करे, जस्ट लाइक ए डिफ्यूजन प्रोसेस और जस्ट लाइक ए एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस, ये सिक्रीशन क्या होगा, इसकी बॉडी से रिमूव आउट होना है। इन सेल से ये सिक्रीशन क्या हो गया, बाहर। ये कौन से सेल्स हैं, ये इन ग्लैंड्स के ही सेल है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड हम लेते हैं, तो स्वेट ग्लैंड के अंदर से जब सिक्रीशन निकलता है, वाटर निकलेगा, वाटर के साथ में यूरिया, सॉल्ट्स वगैरह सब रिमूव हो रहे हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू रिमूव हो रहे हैं, दैट प्रोसेस इज एक्सोसाइटोसिस। सेल ने अपने अंदर से इनको सब्सटेंस को बाहर निकाल दिया बिना अपने आप को रप्चर करे हुए। ओके, अगर इस तरह का सिक्रीशन हो रहा है तो वो कौन से ग्लैंड्स कहलाएंगे, दैट इज मीरोक्राइन ग्लैंड, एंड द एग्जांपल इज स्वेट ग्लैंड। कौन सा एग्जांपल है इसका, स्वेट ग्लैंड। अब आ जाइए आप, नेक्स्ट वन इज द एपोक्राइन। अब एपोक्राइन के अंदर कंडीशन देखिए आप, ये सेल है, ठीक है ना, ये कौन से सेल्स हैं, ये ग्लैंड्स के ही मल्टीसेलुलर सेल्स हैं। अब ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे। तो जब इन सेल्स ने अपना सिक्रीशन प्रोड्यूस करा तो सिक्रीशन के साथ साथ ये जो ऊपर वाला जो टिप वाला पोर्शन है इसका, ठीक है, ये टिप वाला पोर्शन, ये टिप भी ये इसके साथ में क्या कर देगा, रिमूव। एपो मीन्स अपर पोर्शन, अपेक्स पोर्शन, तो अपेक्स इज रिमूव्ड। अपेक्स क्या हो गया, इसका रिमूव हो गया, इसका टिप जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। किसके साथ में, सिक्रीशन के साथ में। सिक्रीशन तो निकाला, सिक्रीशन के साथ साथ में ऊपर वाला टिप जो है वो भी क्या हो गया, सेल का बाहर निकल गया, ठीक है ना। लेकिन थोड़े दिन बाद में वापस जैसे ये रिमूव होगा उसके बाद में सेल जो है अपने आप जो है न्यू वापस रिजुविनेट हो जाएंगे और नए बन जाएंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन के अंदर हमारी बॉडी में जो है चलता रहता है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये वो सेल्स हैं जो कुछ अपने सेल का पार्ट भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड्स, बट कौन से स्वेट ग्लैंड्स, आर्मपिट्स के स्वेट ग्लैंड। आपने देखा होगा कि जब नॉर्मल सिक्रीशन जो निकलता है बॉडी में से, तो आप उस सिक्रीशन के थ्रू आपका जो भी गारमेंट आप पहनते हो उसके ऊपर कोई भी निशान नहीं होता, बस सिंपल सा एक क्या कहते हैं सॉलिड मटेरियल, और ये सब आपकी बॉडी में से रिमूव हो जाते हैं। लेकिन जब आर्मपिट वाले जो पोर्शन है उसके अंदर सेल का कुछ पार्ट जो है वो निकल के आया है, तो आप देखोगे कि आपके जो गारमेंट है उसमें थोड़ी सी येलोइशनेस आ जाएगी। दैट येलोइशनेस इज जस्ट ड्यू टू द अपेक्स पोर्शन ऑफ द सेल। Okay, clear? So apocrine, its secretion is just like this merocrine gland, but the apex portion is removed during secretion,
and the example is armpit sweat glands. Okay, now come to the last one, that is the holocrine. holocrine के अंदर आप देखिए, सपोज करो ये सेल है, इस सेल को अपना सिक्रीशन निकालना है, ठीक है, सेल है और ग्लैंडुलर सेल है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स यहाँ पड़ रहे हैं स्किन के, इस सेल को अपना सिक्रीशन क्या करना है, रिमूव करना है। जब ये अपना सिक्रीशन रिमूव करेगा तो सिक्रीशन के साथ साथ वो क्या कर रहा है, अपने आप को भी रिमूव कर देगा। एक टाइम अगर इसकी बॉडी में से इजेक्ट आउट हुआ सिक्रीशन, उसके साथ में ये सेल भी क्या हो जाएगा, खुद अपने आप फिनिश्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर सेल सिक्रीशन के साथ साथ फिनिश हो जाता है, उस तरह के सिक्रीशन को हम क्या कहेंगे, कौन से वाले का उस सिक्रीशन कहेंगे, दैट इज holocrine. So now the whole cell, this is totally finished or removed. ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा ड्यूरिंग सिक्रीशन। जब भी ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा तो ये खुद भी क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। अब इस सिक्रीशन को आप क्या कहोगे, कौन सा सिक्रीशन हुआ, holocrine। आपकी जो है ग्लैंड्स जो है वो वापस, आपकी बॉडी जो है वापस उस ग्लैंड्स को बना लेंगी और ये क्या हो गए, न्यू फॉर्मेशन हो गया किसका, सेल का। कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ दिस holocrine? ओके, एग्जांपल ऑफ holocrine इज व्हाट, sebaceous gland। कौन है एग्जांपल, दैट इज sebaceous gland। sebaceous gland किसका एग्जांपल है, holocrine का। ओके, mammary gland, these are the example of apocrine gland। जो टिप वाला पोर्शन रिमूव हुआ है, सेम ये प्रोसेस मैमरी ग्लैंड के अंदर भी होता है। तो प्लीज रिमेंबर, आपकी जो सेबेशियस ग्लैंड है उनका सिक्रीशन holocrine टाइप है, आपकी जो मैमरी ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रीशन एपोक्राइन टाइप है, और आपका जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रीशन मीरोक्राइन ग्लैंड है। और कुछ स्वेट ग्लैंड जो आर्मपिट्स में पाए जाते हैं उसका सिक्रीशन कैसे होगा, एपोक्राइन सिक्रीशन। सो दिस इज क्लियर बेटा। नाउ मूव टू द next topic. Okay, yes, अब हम आते हैं एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन देखो, सबसे पहली बात, मैमल्स के अंदर एंडोस्केलेटन कैसा है, लिविंग। ऑब्वियसली एक्सोस्केलेटन डेड हो सकता है, लेकिन एंडोस्केलेटन किसी के भी अंदर हो कैसा रहेगा, लिविंग। सो नेक्स्ट इज द एंडोस्केलेटन इन मैमल्स। एंडोस्केलेटन जो है सबसे पहले लिविंग, इससे बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके ईयर के अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट है, ईयर, आपके ईयर के अंदर हियरिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है, आप अच्छी तरह से सुन पाते हैं दूसरे एनिमल्स के अकॉर्डिंग। तो मैमल्स जो है वो ज्यादा हियरिंग कैपेसिटी को रखते हैं। क्यों रखते हैं, किसकी वजह से, बिकॉज इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, बोन्स प्रेजेंट है। तो ईयर के अंदर कितनी बोन्स है, 6 बोन्स, और वी कैन से 3 पेयर, 3 in each ear, and the name is Miss Malleus, Incus and stapes. Stapes is the smallest bone of your body. This is the smallest bone. सबसे छोटी बोन आपकी बॉडी की कौन है, that is stapes. अब आ जाइए आपका vertebral column. Okay, now come to the vertebral column. vertebral column के अंदर कितनी बोन्स जो है मैमल्स में प्रेजेंट होती हैं। अगर हम काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ बोन्स, तो कितने वर्टिब्रा हैं, टोटल 33 वर्टिब्रा हैं। लेकिन कुछ वर्टिब्रा फ्यूज भी होते हैं, और फ्यूज होने के बाद जब आप उनको काउंट करते हो तो उनका काउंटिंग कितना हो जाएगा, 26, दैट इज आफ्टर फ्यूजन। इस चीज का ध्यान रखें, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछने चाह रहा है। अगर वो आपको कहेगा कि नंबर ऑफ वर्टिब्रा, तो दैट इज 33, एंड नंबर, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा आफ्टर फ्यूजन, तो फ्यूजन के बाद में जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 26। अब आप देखिए आपकी सर्वाइकल में कितनी है बोन्स,
दैट इज 7। आपकी गर्दन के अंदर कितनी बोन्स आती हैं? 7। आपका जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, थोरेसिक रीजन जो है, उनके अंदर कितने वर्टिब्रा है? दैट इज 12 वर्टिब्रा आपके थोरेसिक रीजन के अंदर है। और ये सारे वर्टिब्रा जितने भी आप देख रहे हो, 7 हुआ, 12 हुआ, ये फ्यूज्ड नहीं है, ये अनफ्यूज्ड है। ओके, नेक्स्ट इज द लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा कौन से वर्टिब्रा है? आपका जो क्या कहते हैं, कमर वाला रीजन जो होता है, उस कमर वाले रीजन के अंदर जो वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लंबर वर्टिब्रा। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हाईली डेवलप्ड वर्टिब्रा। अगर आपके पूरे वर्टिब्रल कॉलम में कोई है तो वो कौन से वर्टिब्रा है? दैट इज लंबर। दैट इज ऑल्सो 5 इन नंबर। कितने हैं लंबर वर्टिब्रा? 5। नेक्स्ट कम टू द सैक्रल, दैट इज सैक्रल वर्टिब्रा। सैक्रल वर्टिब्रा जो है, सैक्रल वर्टिब्रा जो है उसके अंदर कितने हैं? 5। लेकिन वो 5 क्या है? फ्यूज। प्लीज रिमेंबर, लंबर में भी कितने थे? 5। इसके अंदर भी कितने हैं? 5। लेकिन ये 5 कैसे होंगे? फ्यूज होंगे। एंड द लास्ट वन, लास्ट कौन सा रह गया है? कॉर्डल वर्टिब्रा। लास्ट कौन सा वर्टिब्रा है? कॉर्डल वर्टिब्रा। और आपके कॉर्टेक्स में, कॉर्डल में, क्योंकि पूंछ अब नहीं होती, वी आर टेललेस, ये हमारा इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन के बाद में हम क्या हो गए हैं? टेललेस। क्योंकि लेमार्क ने क्या कहा था कि जो ऑर्गन्स हमारे यूज में आते हैं, जो डिसयूज होते हैं, वो धीरे धीरे रूडिमेंट्री होते चले जाते हैं। सेम लेमार्क के लॉ को ही ये शो कर रहा है। कॉर्डल वर्टिब्रा पहले हमारे अंदर इलोंगेट थे, लेकिन अब ये स्मॉल हो गए और फ्यूज हो गए, एंड देयर नंबर इज 4। Okay, so first cervical 7 in number, second thoracic 12 in number, third lumbar that is 5 in number, and fourth sacral that is 4 but that is fused, and fifth one is the caudal vertebra which is again fused 4 vertebra. So total number is 33 but after fusion it is 26. तो आप सभी के अंदर 26 आफ्टर फ्यूजन के बाद में वर्टिब्रा प्रेजेंट है। और ये सारे वर्टिब्रा एक लाइन के अंदर आपस में अरेंज है, एंड दैट लाइन इज नोन एज व्हाट? सिनसैक्रम। अगर वर्टिब्रल कॉलम इस तरह से आपस में फ्यूज होके एक लाइन, जैसे सर्वाइकल आ गया, थोरेसिक हो गया, लंबर, सैक्रल, कॉर्टेक्स, ये इस तरह से फ्यूजन होके बनाते हैं, एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, दिस इज नोन एज व्हाट? सिनसैक्रम। इसी को हम क्या कहते हैं? सिनसैक्रम कंडीशन कहते हैं। तो सिनसैक्रम कंडीशन किन के अंदर पाई जाती है? मैमल्स में भी पाई जाती है और एवीज में भी पाई जाती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंडोस्केलेटन, दैट इज सिनसैक्रम, नेचर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। सो दिस इज क्लियर? ओके, सो ध्यान रखें, एंडोस्केलेटन कैसा है? लिविंग है, हालांकि प्रोटीन होता है इसके अंदर, ओसीन प्रोटीन पाया जाता है, वो डिटेल के अंदर है, वो उसको हम अपने फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ईयर में 6 बोन्स जो हैं प्रेजेंट होती है, मैलियस, इंकस और स्टेपिस। और स्टेपिस क्या है? स्मॉलेस्ट बोन। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 बोन एंड आफ्टर फ्यूजन इट इज 26 एंड द अरेंजमेंट इज सिनसैक्रम। ओके, यस, कम टू द नेक्स्ट सिस्टम। Yes, now come to the RBC. Mammals have smallest size RBC. पूरे एनिमल किंगडम के अंदर अगर सबसे छोटे आरबीसी किसी में मिलते हैं तो वो किसके अंदर मिलते हैं? दैट इज इन मैमल्स। आरबीसी हैव स्मॉल साइज, दैट इज ओनली 7 माइक्रोन। ठीक है, मैमल्स के अंदर ये साइज जो है बहुत ही क्या होती है? स्मॉलेस्ट होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम जो है आपको मालूम है सबसे एडवांस जो है क्लास कौन सी है? दैट इज द क्लास मैमल्स। ये जो क्लास मैमल्स है सबसे हाईली एडवांस क्लास है जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के अंदर 2 चीजें जो बिल्कुल यूनिक है इन केस ऑफ मैमल्स। सबसे पहले नर्वस सिस्टम के अंदर सेरिब्रम का पोर्शन बड़ा हो गया है और किसका पोर्शन बड़ा हो गया है? सेरिबेलम। ये दोनों पोर्शन किसके अंदर? मैमल्स के अंदर सबसे लार्ज साइज के हैं। कौन से वाले? सेरिब्रम
और ह्यूमन बीइंग में तो सबसे ज्यादा बड़ा ही क्या होता है, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम. दिस इज ऑफ व्हाट, लार्जेस्ट इन साइज, लार्जेस्ट इन साइज. एक तो ये कैरेक्टर जो इसको क्या करता है, बिल्कुल अलग तरह से डिफरेंशिएट करता है इसके अंदर, मैमल्स के अंदर. ठीक है. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर ये दोनों क्या है, सेरिब्रम वाला पोर्शन है. यहां पर ये राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, बीच में एक स्मॉल आपको रॉड जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये किससे बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है न्यूरॉन से. ठीक है ना. ये तो दोनों ब्रेन को जोड़ने का काम एक नर्व फाइबर जैसा स्ट्रक्चर कर रहा है, और दोनों ब्रेन के बीच में जो ट्रांसफर है या दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको इंप्रूव ये वाला पोर्शन करता है. और इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम. इसी की वजह से ह्यूमन बीइंग या मैमल्स जो हैं हाईली इंटेलिजेंट एनिमल्स हैं इन द होल एनिमल वर्ल्ड. ठीक है. तो इसके पीछे रीजन क्या है, दैट इज कॉर्पस कैलोसम विच कनेक्ट राइट ब्रेन टू द लेफ्ट ब्रेन. एंड अनदर पॉइंट इज द लार्ज साइज सेरिब्रम एंड सेरिबेलम. तो आपका नर्वस सिस्टम इन दो कारणों से, इन दो रीजंस की वजह से क्या है, हाईली डेवलप्ड है. यस. नाउ कम टू द क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर है, दैट इज 12 पेयर. याद रखना. राम, व्हाट इज राम? राम इज रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स. इन तीनों के अंदर, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, इन तीनों के अंदर हमेशा क्रेनियल नर्व्स कितनी पाई जाएंगी, 12 पेयर ऑफ cranial nerves found. Okay. Yes. Now one thing, the egg have no yolk, or that is we can say कि eggless, that is yolkless egg is found in case of which kingdom, which class, that is the mammals. तो यहाँ पर जो है यॉक की जो है क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन एग के अंदर मिनिमम होती है. सबसे कम अगर यॉक पाया जाता है तो कौन से वाले उसमें मिलेगा आपको, आप कह सकते हो कि यॉक की क्वांटिटी है ही नहीं. स्मॉलेस्ट एग जो है वो किसमें मिलता है, दैट इन केस ऑफ क्लास मैमल्स. तो एग साइज इज स्मॉलेस्ट विद नो यॉक और very less in amount. वैसे तो पाया ही नहीं जाता यॉक, लेकिन जो एग लाइक मैमल्स वगैरह हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत जो है यॉक पाया जाता है. तो यॉक की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है. ठीक है ना. और एग की साइज जो है वो भी सबसे स्मॉलेस्ट जो है पूरे एनिमल किंगडम के अंदर किसके अंदर है, दैट इज हैविंग क्लास मैमल्स. अब हम थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी टाइप्स हैं. बिल्कुल हल्का सा क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एनिमल्स को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करेगा. क्लासिफिकेशन इज नॉट इन योर सिलेबस. प्लीज रिमेंबर, क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, चाहे वो 12th का 11th का सिलेबस हो, चाहे वो नीट का सिलेबस हो. लेकिन उसका थोड़ा आइडिया आपको अगर नहीं होगा तो क्वेश्चंस को आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होंगे. यस. कम टू द क्लासिफिकेशन. तो हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया. क्लास मैमल इज अगेन डिवाइडेड इनटू, फॉर एग्जांपल दिस इज क्लास मैमल्स. हम इसको 3 उसमें क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. ओके. क्लास Mammalia having how many orders? 3. 1, 2, 3. That is
प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया and eutheria. Prototheria is also known as egg-laying mammals. Egg-laying mammals. And this metatheria is known as pouched mammals. इनके pouched होते हैं छोटे छोटे, just like a kangaroo. Pouched mammals. And eutheria, it is the highly advanced form like us, placental mammals. Placental mammals. तो जो भी मैमल्स हैं जो एग का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपने देखा होगा सबसे पहले जो डेवलप हुआ है मैमल वो कौन सा है? प्रोटोथीरिया। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? एग प्रोड्यूस करेंगे। तो ये प्रोटोथीरियन एनिमल्स जो हैं दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पुराने जो हैं वो कौन है? दे आर प्रोटोथीरियंस। इनके अंदर आपने फॉर एग्जांपल ऑर्निथोरिंकस आप जानते होंगे, हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं। यस, डक बिल्ड प्लेटिपस जिसे अपन कहते हैं। ऑर्निथोरिंकस किसका एग्जांपल है? प्रोटोथीरिया का। और इसका कॉमन नेम क्या है? दैट इज डक बिल्ड प्लेटिपस। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी जब आप आगे से जो क्या कहते हैं माउथ देखोगे, क्योंकि हमारे तो मूवेबल लिप्स होते हैं, इसके आगे की साइड में बिल्कुल बीक होगी, वो किसके जैसे है? डक के जैसे। दूसरा एक और एग्जांपल है इकाइडना। इकाइडना दैट इज स्पाइनी एंट ईटर, और इसकी बॉडी पर स्पाइन्स है और ये वास्तव में चींटियां ही खाता है। दैट इज स्पाइनी एंट ईटर। ओके, तो मैमल्स का ही कैरेक्टर है ये। बट प्लीज इसमें एक चीज ध्यान रखना कि मैमल्स जो है इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, बट मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर निपल्स प्रेजेंट नहीं है। दीज आर निपल लेस एनिमल्स, मेमोरी ग्लैंड्स विदाउट निपल्स। ओके, मेमोरी ग्लैंड्स विदाउट nipples. Yes, come to the pouched mammals. Pouched mammals का सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये प्रिमिटिव तो नहीं कहेंगे, ये बीच वाली स्टेज में है, हम तो हाईली एडवांस वाली स्टेज के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और ये बीच वाली मॉडरेट वाली स्टेज के अंदर है, ओल्ड नहीं है। पाउच्ड मैमल्स, इसका एग्जांपल आपको याद होगा कैंगरू। कैंगरू जो है उसके अंदर पाउच प्रेजेंट होता है, पाउच से नरिशमेंट देता है। अब जैसे जितने भी एनिमल्स थे प्रोटोथीरियंस के, व्हाट दे आर ओविपेरस इन नेचर। कैसे नेचर के थे ये? ओविपेरस। लेकिन इस कंडीशन के अंदर ये नेचर किस में चेंज आएगा? ओवोविविपेरस। ओके, कैंगरू जो है इसके पास में क्या प्रेजेंट है? स्पेशल फीचर जो है, सबसे अलग से फीचर मेटाथीरियंस का क्या होता है? इनके पास में क्या होते हैं? पाउच होते हैं, और उस पाउच के अंदर ये अपने यंग वंस को रखते हैं। और जब तक यंग वंस पूरा बड़ा नहीं हो जाता है, जब तक, ताकि वो अपनी आपको जो है क्या कहते हैं इंडिपेंडेंटली लाइफ को लीड कर सके, तब तक जो है पेरेंट्स जो है इसको क्या करेंगे? नरिशमेंट, स्पेशली मदर जो है वो क्या करती है? इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और अपने साथ ही रखती है, ठीक है ना। तो इनके अंदर स्पेशल कैरेक्टर क्या है? पाउच जो है वो प्रेजेंट होंगे। और आप इवोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि जितने भी मार्सुपियल्स जो हैं, मेटाथीरियंस जो हैं, उनको ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के थ्रू एक छोटे से एरिया के अंदर ही वो कंजर्व होकर रह गए, और वो छोटा सा एरिया क्या कहलाया था? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो उसका आसपास से जो है लिंक कट गया था, और उसके एनिमल्स टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ एक ही उसमें क्या हुए हैं? इवॉल्व हुए हैं। तो उनका नेचर जो है बिल्कुल अलग से आ जाएगा। यस, यूथेरियंस, इनके अंदर भी मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स विद निपल्स। Same with the placental mammals, that is same, they have also mammary gland with nipples and they are most advanced. यहाँ पर पूरा nourishment from 3rd month
टू द जेस्टेशन पीरियड, 9 मंथ का अगर जेस्टेशन पीरियड है, पूरा कंप्लीट जेस्टेशन के अंदर प्लासेंटा के थ्रू क्या मिलेगा, नरिशमेंट। यहाँ पर पाउच के थ्रू नरिशमेंट मिल रहा है, यहाँ पर प्लासेंटा प्रोवाइड नरिशमेंट। तो जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी मैमल्स हैं, वो सारे के सारे मोस्टली कौन सी कैटेगरी में आते हैं, दैट इज द मोस्ट एडवांस कैटेगरी, यूथीरिया। ओके, यस ओके बेटा, तो मेटाथीरियंस और यूथीरिया और प्रोटोथीरिया होता है कंप्लीट। अच्छा, एक स्पेशल एक इंपॉर्टेंट फीचर और इसमें आप मेंशन करना कि ये जो यूथीरियंस हैं, इनके अंदर जेस्टेशन पीरियड जो होता है, ठीक है ना, जिसको अपन गर्भकाल कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड क्या है, लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड, लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड किसमें मिलता है, दैट इज यूथीरिया। अब ये लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड क्यों है, इसलिए है क्योंकि प्लासेंटा इनके अंदर क्या होता है, हाईली डेवलप्ड, दे आर नेम्ड एज प्लासेंटल मैमल्स। तो प्लासेंटा सबसे ज्यादा, प्लासेंटा इज हाईली डेवलप्ड, इसी वजह से इनका जेस्टेशन पीरियड क्या होगा, लॉन्ग होगा। अब इस केस के अंदर आ जाइए आप मेटाथीरिया में, तो मेटाथीरिया के अंदर जो है जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, कम होता है, और प्लासेंटा वीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है मेटाथीरिया का, दे आर पाउच मैमल्स, दे हैव वीक प्लासेंटा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इनके। यस, तो हमारी क्लासेस होती हैं, क्लास की जो ऑर्डर्स होते हैं खत्म, और इसके बाद हम आएंगे आपके न्यूमेरिक्स यानी कि ट्रिक को लेकर, जिसके थ्रू आप अपने इन एग्जांपल्स को अच्छी तरह से कर सकते हैं जो एनसीईआरटी में है। एक भी एग्जाम्पल अभी तक जितने भी नीट के एग्जाम हुए हैं, कोई भी एग्जाम्पल आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आया है, इसलिए एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स दे आर वेरी वेरी एटमोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ कम टू द निमोनिक। यस, आपने मालूम है आपको पीएम और सीएम क्या करते हैं, ऑफर प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, अगर अपने अपने एम्प्लॉइज को बोनस ऑफर करें तो उसी के बेसिस पे हमने एक छोटा सा निमोनिक बनाया है जो क्लास में मिलिया का है। ओके, सो पीएम सीएम ने एम्प्लॉइज को बोनस ऑफर किया। ओके, पीएम सीएम ने एम्प्लॉइज को क्या ऑफर करा, बोनस। बस बोनस आया, आगे आप छोड़ दो, ठीक है ना, बोनस, नस आप लिखोगे नहीं क्योंकि बोनस मिल गया, अब आपको क्या मतलब है, ठीक है। यस, सो व्हाट इज पी, पी, तो पी जो है स्पेशली जो है आपने देखा होगा बैट को, बैट उड़ता रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं, टैरोपस, ठीक है ना, फ्लाइंग फॉक्स। सो पी इज व्हाट, टैरोपस, नॉर्मली नोन एज फ्लाइंग फॉक्स। क्लियर है? यस, कैंगरू, कैंगरू का साइंटिफिक नेम बोलो बेटा, मैक्रोपस, मैक्रोपस इज व्हाट, कैंगरू, आपका फ्रेंड। हाँ जी, सी, सी घोड़ा, कैमिलस, घोड़ा की ऊंट, यस, सी कैमिलस, दैट इज कैमल। तो कैमल का साइंटिफिक नेम और उसके नेम के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आ जाते हैं एम, एम क्या है, एम फॉर मंकी, एंड दैट मंकी जीनस इज मकाका। मकाका रेडिटा आपको मालूम है, जिसमें से RH फैक्टर्स को जो है निकाला गया था, दैट इज मकाका। मकाका इज व्हाट, दैट इज द नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ मंकी। ने एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज तो है नहीं यहाँ पर, E इज फॉर इक्वस। आपको मालूम है इक्वस किसे कहते हैं, घोड़े को, हॉर्स को हम क्या कहते हैं, इक्वस। कम टू द बी, बी क्या है, बैलोनोपेट्रा, बैलोनोपेट्रा मालूम है आपको, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल को हम क्या कहते हैं, दैट इज बैलोनोपेट्रा, दैट इज ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल क्या है, मैमल्स है, बैलिनोपेट्रा। और लास्ट ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस क्या है, अभी अपन ने पढ़ा था, किसके अंदर पढ़ा था ऑर्निथोरिंकस, एग लेइंग मैमल्स के अंदर, दैट इज डकबिल प्लैटिपस, ऑर्निथोरिंकस।
डक बिल्ड प्लेटिपस। तो बेटा ये सारे जो थे न्यूमेरिक जो आपको बताए हैं, पीएम सीएम ने एम्प्लॉइज को बोनस का बो लिखोगे, ऑफर करा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो टेरोपस, मैक्रोपस, कैमिलस, मकाका, एक्वस, बैलिनोपेट्रा और निथोरिंकस। अच्छा, इसके अलावा भी एनसीईआरटी ने कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन उनके नाम आपको भी याद होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं रेटस रेटस। कौन है भैया रेटस रेटस भाई साहब? रेटस रेटस है आपका प्रेट, जानते हैं आप सब लोग उसको। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल है। जैसे हम बात करते हैं कैनिस, तो कैनिस क्या है? व्हाट इज कैनिस? डॉग। जब कैनिस आया है तो फेलिस भी आएगा, ठीक है ना। जब हम फेलिस की बात करेंगे तो फेलिस यानी कि कैट। तो ये कैनिस, फेलिस आप याद रखना, कभी भी कैनिस के आगे सी लगा के कैट नहीं करना है, सी डी होता है। तो कैनिस डॉग, ठीक है। फेलिस आपको याद हो जाएगा अपने आप कैट, क्योंकि जब कैनिस याद हो गया तो पीछे वाला होगा फेलिस। एलिफस एलिफेंट। तो ये सिंपल वाले हैं, इनको हमने नहीं लिखा है अपने न्यूमेरिक में, अदरवाइज क्या होता, वो टफ वाले आप जो है भूल जाते। डॉल्फिनस, डॉल्फिन, तो दे आर वेरी सिंपल वन। डॉल्फिनस नाम से ही पता चल रहा है आपको, ठीक है ना, दैट इज डॉल्फिन। तो इनके साइंटिफिक नेम में कुछ नहीं है। पैंथेरा टिग्रिस सबको मालूम होगा टाइगर के बारे में, मिस्टर मोदी वहां पर घूम के भी आए हैं बेयर ग्रिल के साथ में। तो पैंथेरा टिग्रिस दैट इज टाइगर, ठीक है। तो दीज आर सिंपल वंस। अब आप चाहे तो पैंथेरा लियो करके लॉइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले जो है एग्जांपल्स ये टफ नहीं है, आपको सिर्फ ऊपर वाले पे कंसंट्रेट करना है, ओके। तो पीएम सीएम ने एम्प्लॉइज, आप चाहो तो लिख सकते हो बीच में, को बोनस, ठीक है। आगे कुछ नहीं, क्योंकि बोनस अपने आप में बहुत गलत चीज है, बोनस नहीं मिलना चाहिए, तो ये बोनस वाला है यहाँ पर। इसके बाद में जो भी एग्जांपल है, रेटस रेटस, फॉर द रेट, कैनिस और फेलिस पे जरूर याद रखना। कैनिस और फेलिस पे एक बार छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, तो कैनिस डॉग और फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन, डॉल्फिनस डॉल्फिन। तो ये सारे एग्जांपल्स खत्म होते हैं। तो हमारा क्लास मैंने लिया, हमने पूरा लिया। इसमें से जितने भी स्पेशल कैरेक्टर थे पूरे एनसीईआरटी को डिटेल में टच करा गया है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिकोड करा गया है। जितने भी उन्होंने डायग्राम्स दिए हैं उन डायग्राम्स को, उनके एग्जांपल्स को हमने स्पेशली अलग से न्यूमेरिक बना के भी याद करा है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो अकॉर्डिंग टू द क्लास मेंबर्स बाहर से आने के चांसेस है इसमें से, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द नीट एज वेल एज 11th। सो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बता दो बेटा प्लीज, यस।